Hi guys, this is Tuti Gogia. In case you are listening this was for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 4 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me, whose name is Shiv. तो थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ. हाउ डू आई नो यू? सबसे पहले मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, अभिमन्यु वाला, अभिमन्यु अरोरा पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पे मैंने देखा था. एंड Hmm. आई जेन्युइनली लाइक्ड योर views and whatever you were saying regarding the acting, like coaching and being an actor and about theater, and you are an NSD alumnus, which is huge. So मैंने वो podcast देखा था, which is one part of knowing you. The other part is when you came to Gurgaon and you did this TGIS के साथ collaboration में your acting workshop, Yeah. and I attended it, which was really very nice. I want to tell everyone that if you get a chance and if you are curious about how to act, do try Shiv's workshop. So it was really amazing, Shiv. So you are an Thank NSD you. alumnus, you are actor, you are acting coach, plus आपका खुद का थिएटर ग्रुप भी है, विच इज नाटेश्वर थिएटर. आपने बहुत सारे प्लेस करे हैं. You have done some acting work as well. So this is like your journey till now. I will pass over to you. पहले तो अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो I'm really sorry. आप add कर देना Mhm. in your a bit of intro, and then we'll take conversation from there. I want to know your experience, and कुछ कुछ चीज़ें उस workshop में भी थी जिसके बारे में I want to talk again. तो yeah, over to you, Shiv. Sure. Thank you for joining the podcast. Yeah, thank you. Yeah. Thank you so much for inviting me, Stuti. Obviously, आपने सारी बातें बोल दी introduction में, and thank you for that. As yes, I'm an actor. In short, I'm an actor, acting coach, and I'm the founder of Nateshwar Theatre Group that is running in Mumbai right now. और I'm an NSD alumnus, Masters in Theatre and Acting की अगर degrees so-called degrees की बात की जाए. And I've given workshops at IITs, IEMs, different college of Delhi universities, and internationally भी online based पे I've given workshop to international Latin American students as well. और इसके अलावा अच्छा, workshop दे that's चुका हूँ great. more than 600 बच्चे I think I have trained, uh, including online and offline. And I'm running a theatre group जहाँ पर हम acting की बात करते हैं और workshops की बात करते हैं and importantly life की बात करते हैं. Because I mean, Hmm. I would say कि life is very much connected with theatre and acting. So that's it about Hmm. me and myself. Yes, ओके. ये बहुत आपने डीप बात बोली कि लाइफ इज ऑल अबाउट, आई मीन इट्स इंटर रिलेटेड बेसिकली. तो जब हमने वर्कशॉप exactly. भी करी थी आपकी, अटेंड मैंने जो, तो उसमें भी इट वाज नॉट अबाउट एक्टिंग, इट वाज मास्टरिंग इमोशंस, राइट, व्हिच वाज द कोर. Correct, correct. राइट, इट्स द कोर. सो हाउ हाउ फर्स्टली जब आपने जैसे ये बोला, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करोगे, हाउ लाइफ एंड एक्टिंग आर रिलेटेड, लाइक हाउ मास्टरिंग इमोशन एंड एक्टिंग इज रिलेटेड बेसिकली. Absolutely. होता है क्या है कि इमोशन जो होते हैं जब हम बचपन में होते हैं, मतलब हम छोटे होते हैं, तो होता है क्या, बच्चे से अगर आप देखें, कभी छोटा बच्चा हो 5-6 साल का, अगर आप उससे लॉलीपॉप छीन लीजिए कभी, आपने देखा होगा अपने आसपास, तो होता क्या, अगर उसकी कोई भी प्यारी चीज है तो वो एकदम से रोएगा, चिल्लाएगा, मम्मा मम्मा ऐसे करते रहता है. इतनी उसके इमोशन बड़े ओपन है. He doesn't care about anything, where he's standing, where he's sitting, or whenever he is, वो कहीं पे भी wherever he is, वो अपनी चीजों को बस रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब उस इमोशन में जाने की कोशिश करता है. सिमिलरली अगर उसको कोई चीज बहुत वंडरफुल लगती है तो ही विल डू से वाओ, है ना, पूरा एक्साइटेड होके, या कुछ बहुत गुस्सा आता है किसी चीज पे तो बहुत अपने इमोशन ओपन अप रखता है. नॉट ओपन अप मतलब जो ईश्वर ने दिए हैं वो इमोशन को जैसा वो दिखाना चाहता है, उसके दिल में जो होता है वही सामने व्यक्त कर लेता है. लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन, सोसाइटी, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें या फिर सोफिस्टिकेशन उसके हम अपने इमोशंस को दबा लेते हैं. ऐसे ही होता है. अगर कॉर्पोरेट में बहुत लोग काम करते हैं, उनको आइडिया होगा कि भले ही उसको बॉस पे गुस्सा आ रहा है, बट वो क्या करे, ओके सर, आई एम सॉरी, इट इज स्माइल, आई वुड से दैट वुड बी अ फेक स्माइल ओनली. ठीक है सर, आई विल डू इट. पीछे जाके गाली बकते हैं उसको कि यू जस्ट से कि अच्छी बात नहीं बोली सर ने. तो वो क्या होता है, हमारे इमोशन धीरे धीरे दबने लग जाते हैं. बट हम क्या कहते हैं, थिएटर के थ्रू, थिएटर के माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं कि अपने इमोशन जैसे हमारे बचपन में थे वैसे उसको निकालने की कोशिश करें. उससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आपके इमोशन अंदर दबेंगे नहीं. क्योंकि अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे यही आ रही है कि लोग अपने इमोशंस को, भावनाओं को दबा लेते हैं, चाहे वो कोई भी इमोशन. स्पेसिफिकली एंगर को दबाता है कोई भी इंसान. अगर ऑफिस में गुस्सा करना तो गुस्सा नहीं करता. फिर जब वो बाहर गाड़ी से अपने निकलता है, मतलब रोड पे जा रहा होता है, और अगर छोटा सा भी उसके इमोशनों को ट्रिगर कर देता है, मान लीजिए फिर रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी खड़ी हुई है और पीछे से कोई इंसान स्कूटी चला रहा है और उसको पी पी कर रहा है, he might come out of that car and he will slap him. And I've seen that. तो रिलीजन में ऐसा बहुत होता है.
गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात ये है कि उसने अपना गुस्सा कहीं का जगह उसने कहीं और निकाल दिया। सिमिलरली जो अपनी फैमिली के साथ बैठता है, उठता है, खाता है, तो कभी कभी बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, या फिर वाइफ या गर्लफ्रेंड से कोई छोटी बात ऊपर नीचे हो गई है, वाइफ के साथ कुछ बात ऊपर नीचे छोटी हो गई है, तो आपने अपना गुस्सा निकाल दिया। ये हुआ क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है शांत रहो, गुस्सा नहीं करते। या कोई प्यार से अगर किसी को कोई प्यारी इंसान लगती है, लड़की हो चाहे लड़का, उसको हम इमोट नहीं कर पाते। बट थिएटर के माध्यम से हम लोग उस लाइफ के पल में जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर अपने इमोशंस को ओपन अप करें, जो कि एज अ ह्यूमन बीइंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, और जो कि हमारे लिए एज एन एक्टर तो इम्पोर्टेंट है ही। तो वो बड़ा जरूरी है कि हम सारे इमोशन जो भी हमारे 8 या 9 रस हैं, भाव है, उनको निकालें। इट्स नॉट अबाउट ओनली एंगर। कुछ लोग आपने सुना होगा लड़के रोते नहीं है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, बी अ मैन, इट्स नॉट राइट। मैं कहता हूँ ऐसे शब्द बोलना, प्रयोग करना ही छोड़ दें लोग, आसपास के लोग। बोले इफ यू वांट टू क्राई, क्राई, रो भाई, अपने इमोशन को बाहर निकाल। बिकॉज आई हैव थॉट दैट आईआईटी आल्सो, आईआईएम्स में मैंने एज मैं जज था, मैंने उनसे जब बात की तो समझ में आता है कि भले हम आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आईआईएम में पढ़ रहे हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर इन, एंड ये बात कहनी सही रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इफ यू हैव सीन देयर लॉट ऑफ सुसाइड केसेस आल्सो ड्यू टू डिप्रेशन, हम्म, एंजाइटीज, है ना? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो अपने इमोशंस को निकाल नहीं पा रहे, कहीं दिखा नहीं पा रहे। सो थ्रू थिएटर हम कोशिश करते हैं कि अपने इमोशंस को आप जब बाहर नहीं निकाल सकते, यहाँ पर आइए, थिएटर क्लास ज्वाइन कीजिए, या फिर कहीं भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट पे जाइए, वहां पर जाइए और इसको इमोट करना सीखिए। फिर हम्म, होता है कि आप खाली हो जाते हो, व्हेनेवर पर्सन जस्ट इमोट हिमसेल्फ ना और हरसेल्फ, वो खाली हो जाता है इंटरनेट। और जब कोई खाली हो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है तो माइंड से अच्छे से उसका माइंड वर्क करने लग जाता है और डिसीजन अच्छे से ले सकता है। सो दैट इज नीडेड। उसमें मेडिटेशन भी बहुत अच्छा साथ प्ले करता है, एंड आप खुद भी थीटा हीलिंग करते हैं, आपको पता होगा इस बात से कि कैसे वो हीलिंग की जाती है। एंड थिएटर इज थेरेपेटिकल, वो उसमें बहुत सारी थेरेपीज हम यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वुड से कि लाइफ इज कनेक्टेड विद थिएटर एंड थिएटर इज कनेक्टेड विद लाइफ। ये बात है। Yeah, thank you so much. That was like quite detail. I wanted to understand it. So thank you. अच्छे से आपने समझाया। दोबारा से जी। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हाउ अबाउट लाइक एनएसडी कैसे हुआ एंड हाउ वाज योर जर्नी इन एनएसडी? थोड़ी मैंने सुनी हुई है, हम्म। बट आई थिंक पीपल हु आर न्यू हियर या जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं देखी होगी, मे बी थोड़ा सा रिपीटेटिव होगा, बट आई स्टिल वांट टू नो इट, लाइक हाउ डिड एनएसडी हम्म। हैपन टू यू एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट? कि एनएसडी से पहले थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि एनएसडी में जाने से पहले कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि यू हैव टू बी ग्रेजुएट। जैसे कोई फॉर्म फिलअप किया जाता है ना, तो उसमें पहली क्वालिफिकेशन है यू हैव टू बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। सेकंड है, आपने कम से कम 6 नाटक 6 प्लेस की होने चाहिए डिफरेंट, ओके। एंड थर्ड इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ एमिनेंट थिएटर आर्टिस्ट, कोई अच्छे से थिएटर आर्टिस्ट के थ्रू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि ये लिख के देता है कि दिस शीश प्रतीक हो गया, हो गया शीश प्रतीक, और इन्होंने ऐसा नाटक किया हुआ है। तो ये ठीक है। 3 या 4 चीजों के बाद यू कैन फिल द फॉर्म फर्स्ट, ठीक है। अब मेरी जर्नी शुरू होती है कि आई स्टार्टेड माय थिएटर ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, ओके। एंड आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट दैट टाइम, और उसके साथ साथ मैंने अपना थिएटर की जर्नी भी शुरू की थी 2012 में, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 2012 और 13 के आसपास की बात है। बट आई यूज्ड टू डू प्ले ऑन माय कॉलेजेस, ना, आई यूज्ड टू परफॉर्म एट डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज, आईपी यूनिवर्सिटीज। But I realized after my graduation that I have to do this only. Why? Because I love this. I love being on the stage all the time. So I started doing professional theatre, uh, not amateur, professional theatre. So I joined different theatre group in Delhi, Gurgaon, Vineet sir. का नाम भी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, Vineet sir is also one of the theatre director whom I joined. Then I realized I need a institute, need a academics qualification जहाँ मैं properly अच्छे से सीख पाऊँ. So उस दौरान मैंने एनएसडी का नाम भी सुना. I went देयर एंड आस्क्ड अबाउट द क्वालिफिकेशन, जो कि मैंने बताया, और फिर उसके बाद आई फिल्ड द फॉर्म, बट आई वाज रिजेक्टेड। आई वुड से 3 टाइम्स आई वाज रिजेक्टेड इन एनएसडी। फिर फाइनली आई गॉट एडमिशन इन एनएसडी इन 2019। और जैसे मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन में क्या था, 3 फॉर्म, वो 3 चीजें चाहिए थी, जैसे कि ग्रेजुएट होना, 6 प्ले की होना चाहिए, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी दिल्ली में सबको पता है, लेकिन जहाँ से मैं हूँ वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, दैट इज वाराणसी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाराणसी।
तो मैंने उसके बारे में सुना ये भी नया सेंटर खुला है, तो आई अप्लाइड देयर। तो पहला ये होता है कि आपका इंटरव्यू होगा फर्स्ट डे, एंड रिटन एग्जाम एंड द ऑडिशन। तो रिटन में कुछ भी पूछ सकते हैं, यू डोंट नो व्हाट विल कम देयर, कुछ भी हो सकता है। दैट इज वेरी मच क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक। एक पिक्चर दे दी गई है, उस पिक्चर से कुछ लोग बने हुए फोटोग्राफ है, एंड दे विल से जस्ट राइट सम डायलॉग ओवर देयर, जो भी आपको समझ में आ रहा है पिक्चर से। तो ऐसे कुछ रिटर्न होता है, व्हाट इज रस, व्हाट इज भाव, ऐसे कुछ रिटर्न में आता है। देन इज द ऑडिशन। ऑडिशन में यू हैव टू जस्ट शो योर टैलेंट, मतलब आपको कुछ मोनोलॉग दिए गए होते हैं पहले से, एक आपका भी होता है एक उनका भी होता है, यू हैव टू जस्ट परफॉर्म दे। आपने मोनोलॉग परफॉर्म कर लिया, उनका भी अपना भी, देन थोड़ा सा गाना आवाज देखते हैं कि आपके सुर कैसे हैं, तो गाना भी आप गा सकते हो। नॉट फिल्मी सॉन्ग, नॉट बॉलीवुड सॉन्ग, थोड़ा सा क्लासिकल या सेमी क्लासिकल या फोक सॉन्ग आप गा सकते हो। एंड फोर्थ इज डांस, रिदम, थोड़ी सी रिदम देखते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कोई हुक स्टेप करना है आपको बॉलीवुड डांस, बस रिदम की बेसिक ताल बजेगी ढोलक के तबला पे, एंड दे विल आस्क यू टू परफॉर्म। इतना होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, दे विल आस्क यू वांट टू जॉइन एनएसडी, आप क्यों करना चाहते हो, प्लेस कौन से पढ़े हैं, प्ले का ये टाइटल है, आपको इसका टाइटल क्यों लगता है बेटर, यही होना चाहिए टाइटल। इस प्ले के अंदर जो कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद आया, आप लगते थे आप इसको किस तरह से करते हैं, वगैरह वगैरह, फलाने फलाने क्वेश्चन। देन यहाँ पर जब लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर सेकंड राउंड होता है। इट्स लाइक यूपीएससी एग्जाम ओनली। तो उससे भी टफ मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 20 या 25 सीट्स होती है, वहाँ पर फिर भी 1900 सीट्स है। तो उसके बाद फिर वर्कशॉप होती है, यूजली 4 या 5 दिन की हो सकती है वर्कशॉप, ठीक है। वहाँ पर फिर डायरेक्टर कहूँगा, कुछ ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं 3-4 दिन तक, और उसको आपको करते रहना होता है। एंड दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि कैसा कर रहा है कोई वहाँ पर। They don't want actors there. They want some people who are very energetic and easily can understand what they are trying to make us learn. तो वो लोग वो चाहते हैं, जो कि मुझे भी तो समझ में आया। बाकी आज तक इसमें समझ नहीं आया कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे सिलेक्शन होता है। लेकिन जितना मुझे समझ में, वो ये देखते हैं कि सुबह 5 बजे क्लास होगी, व्हेन यू विल एंटर एनएसडी, क्या 5 बजे उठ के आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हो उतनी एनर्जी के साथ, और सिर्फ शाम को 8 या 9 बजे क्लास खत्म होगी, या कभी तो पता भी नहीं होता कब क्लास खत्म होगी। क्या वो एनर्जी, क्या वो इंथुसियाज्म, क्या वो प्रैक्टिकलिटी चीजें आप कर पाओगे, या वहां पर स्टेमिना रख पाओगे अपना? सो दैट इज नीडेड ड्यूरिंग दैट वर्कशॉप ट्रेनिंग। सो या दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनएसडी, एंड आई फाइनली गॉट इन एनएसडी। उसके पास आउट होने के बाद आई डिड सम प्लेस अगेन, जो कि मैं पहले से कर ही रहा था। काफी प्लेस कर चुका हूँ मैं। और फिर उसके बाद I finally came to Mumbai. After I would say 10 years of my journey of theatre, I came to Mumbai because I wanted 10 कि मैं पहले खुद को ट्रेन कर लूँ। हाँ, क्योंकि मैं रिजेक्शन से डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी रिजेक्ट होके आऊँ, पहले प्रिपेयर होके जाऊँ। तो दिस वाज माय वे ऑफ कमिंग टू मुंबई, कि पहले मैं 10 साल थिएटर करके आता हूँ, ये कर लूँ पहले। फिर मैं जाऊँगा, तो अगर रिजेक्ट भी होऊंगा तो ये डाउट नहीं होगा कि मेरी एक्टिंग में भी कोई कमी है। सो दिस इज Hmm. द जर्नी टिल नाउ। Got it. So basically, two things you are. एक तो to summarize, basically they want people who are genuinely curious and have zeal. मतलब जिनको genuinely कुछ करना है, ये नहीं है कि आप चलने के लिए चले गए and मतलब करेक्ट, वो नहीं होना चाहिए for the sake of going. They are genuinely looking that you are hardworking and you want यू आर क्यूरियस, एब्सोल्युटली, जेन्युइनली क्यूरियस एब्सोल्युटली। अबाउट व्हाट। तो एक क्वेश्चन ऐसे मुझे दिमाग में आ रहा है, अगर आप आंसर दे पाओ तो बताना। आपसे जी, कुछ जी। कोई क्वेश्चन याद है जो पूछा था और आपको उसका भी आंसर भी याद हो, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज जो आपसे पूछी थी जो आपको आज तक याद है कि ये मुझसे उस इंटरव्यू में पूछी थी, एंड आई वांट टू लाइक यू वांट टू शेयर दैट, यू वांट टू शेयर दैट। श्योर, श्योर, श्योर। यस, एब्सोल्युटली, ये बड़ा अच्छा किस्सा है, आपने याद दिलाया, और ये बड़ा कनेक्टेड है। हुआ क्या, मैं नाम नहीं लूँगा उन जज के, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ पैनल ऑफ 7 6 टू 7 पीपल ड्यूरिंग एनएसडी इंटरव्यू एंड ऑडिशन, ओके? तो होता क्या है, वहाँ पे पूछते हैं कि आप क्यों एक्टिंग करना चाहते हो या क्यों थिएटर करना चाहते हो? तो मैंने पूछा कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ थिएटर, कि मुझे सीखना है और कुछ चीज़ें। और फिर बोला कि आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे, व्हाट यू विल डू? मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊँगा, देन आल्सो आई विल डू थिएटर, मैं थिएटर करता रहूँगा। तो बोलते ऐसे तो सब लोग ही बोलते ही रहते हैं। बोला ऐसे तो सब लोग बोलते ही रहते हैं कि करेंगे थिएटर। फिर नहीं सर, आई विल जेन्युइनली डू थिएटर। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग यहाँ से एक्टिंग सीखते तो जाते हैं एनएसडी से, लेकिन उसके बाद वो थिएटर को उतना तवज्जो नहीं देते, इतना समय नहीं देते। दे व्हाट दे डू, वो अपनी एक्टिंग की जर्नी को बॉलीवुड की तरफ बदल देते हैं, मतलब बॉलीवुड की तरफ चले जाते हैं। टाइम नहीं देते थिएटर थिएटर को थोड़ा सा। लेकिन मैंने दिया, एज अ सेड। तो मैंने उनको बोला ये बात कि
मैं ऐसे थिएटर ही करूँगा। तब हुआ क्या, करंटली मैंने एक प्ले किया यहाँ पर परफ़ॉर्म किया मुंबई में एंड इट वाज़ अ फेस्टिवल। 1 सेकंड। Actually, I'm somewhere, that's why. So, No problem. Yeah. ओके, सो लेट मी कंटिन्यू। सो हुआ ये, इधर तो फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल हुआ यहाँ पर और उसमें काफ़ी बड़े-बड़े हस्तियाँ हैं जिनसे मुझे सम्मान भी मिला, मतलब आई वाज़ अवॉर्डेड देयर एज़ अ डायरेक्टर एज़ एन एक्टर आल्सो। सो इन दैट स्पीच मैंने ये कहा कि सर, आपने मुझे इंटरव्यू में पूछा था, ही वाज़ सिटिंग देयर, जो सर ने इंटरव्यू मेरा एनएसडी में लिया था वो बैठे हुए थे वहाँ पे और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस वाले इंटरव्यू में, जो था। तो बैठे हुए थे, मैंने बोला था कि सर, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि एनएसडी का क्या करोगे? मैंने कहा था सर थिएटर करूँगा और आज मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो बोलते वाह, वेरी गुड, ही स्टार्टेड क्लैपिंग मी। मैं सर वही बात थी, मैं कर रहा हूँ थिएटर, तो आई स्टिल रिमेंबर वैसी घटना हुई थी। इसके अलावा एक और घटना थी, वो बहुत अ, जिसमें मैं सिलेक्ट भी हो गया था उस वाले इंटरव्यू में। उन्होंने मुझे कहा कि अब सब कर दिया आपने, आपने डांस भी दिखा दिया, सिंगिंग भी कर दी, आपने अपना मोनो एक्ट्स, मोनोलॉग्स भी कर दिए हैं, आपने क्वेश्चंस आंसर भी दे दिया। अब क्या है जो आपके पास है, जो आप दिखाना या करना चाहते हो? तो यूजुअली लोग क्या करते हैं उसमें, कुछ लोग बांसुरी बजा के दिखाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर देते हैं, कुछ लोग कविता गा देते हैं, कुछ लोग और कुछ करते हैं। तो मैंने बोला सर, आई डू योगा, मैं आपको सूर्य नमस्कार करके दिखा सकता हूँ। तो थोड़ा सा Wow. उन्होंने स्माइल किया, बोला ओके गुड, करो। मैंने किए, मैं रुका नहीं, मैं सूर्य नमस्कार करता गया 5 राउंड 6 राउंड, तो आई रिमेंबर शायद 7 या 8 राउंड में बोला ओके ओके थैंक यू गुड। तो वो भी मुझे याद है। तो ऐसे सवाल कभी कभार आ जाते हैं एंड यू डोंट नो अबाउट दोस क्वेश्चन कि कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। जी। Hmm. तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 7-8 ऑब्वियसली सूर्य नमस्कार जब करने लगो इट्स नॉट दैट ईज़ी। 6-7 के बाद मतलब यू फील लाइक थोड़ा-सा, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो थोड़ा थकान भी फील होने लगती है। बट दैट्स ग्रेट, मतलब इट्स गुड। सो यू लाइक कितने दिन का था वो मतलब कितने दिन वो चला? कितने दिन का कोर्स था? 2 इयर्स, 1 ईयर? व्हाट डू यू किड से? बट मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिसमें था, there are 5 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। फर्स्ट जो हुँ, पहला वो दिल्ली में है, बाकी इसके अलावा हुँ, 4 है, वाराणसी, हुँ। सिक्किम, बैंगलोर एंड अगरतला। तीन 1-1 ईयर्स के कोर्स हैं। और ये नहीं पता कि जब वाराणसी 1 ईयर का आया था, तो मेरा पहले सेम में 4 बार में नहीं हो पा रहा था एडमिशन। आई वाज़ थिंकिंग कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसे बहुत लोग हैं, मैं ये भी कहता हूँ आपके टाइम पे कि ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है, लेट मी टेल यू स्तुति, बहुत टैलेंटेड, उनका हो नहीं पाता एंड मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि ऐसे-ऐसे लोगों का हो जाता है, सॉरी टू से दैट, जिनका नहीं होना चाहिए, जिनका हो जाता है, तो किसी को नहीं पता क्यों होता है। लेकिन मैं भी हताश हो गया, आई वाज़ थिंकिंग कि लेट्स मूव मूव टू मुंबई। अब मैं ऑडिशन दे के थक चुका हूँ या मैं हुँ। एनएसडी में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं काम तो कर ही रहा हूँ थिएटर। बट ये वाराणसी का 1 ईयर का कोर्स आया। तो आई अच्छा, थॉट कि चलो ओके। लेट्स गिव इट अ ट्राई ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो उस साल में 1 साल में आई अप्लाइड एंड आई फाइनली पास हुँ, दैट एग्जाम। और अच्छी बात ये थी कि वो 1 साल का था और उसमें ऑब्वियसली सारे टीचर्स वो होते हैं जो एनएसडी में दिल्ली वाले में भी होते हैं, ठीक है। बस ये है कि वाराणसी अभी नया है, 4-5 साल हुए हैं, जिसमें लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। दिल्ली वाले को 60 साल होने जा रहे हैं, 55 साल होने जा रहे हैं, तो लोग उसको जानते हैं। बट टीचर्स में वही है, एनवायरमेंटल कंडीशंस वही रहती हैं, हमें भी स्टाइपेंड मिलता है, हमें भी सारी सुख-सुविधा वो मिलती हैं, सारी चीज़ें। बस ये है कि मैं ये बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में कि जहाँ वो 3 महीने की चीज़ क्लास चलती है, अगर मान लीजिए इमोशन की 3 महीने की चल रही है दिल्ली में, तो हमारे यहाँ वो 20 या 25 दिन की चलती है। थोड़ा शॉर्ट हो जाता है बस टाइम थोड़ा स्पैन। शॉर्ट हो। हुँ, और थोड़ा बट यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल्ड में रहता है, वो थोड़ा-सा टाइट रहता है, छुट्टियाँ भी ज़्यादा नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हुए और श्रिंक करते हुए चीज़ों को पढ़ाते हैं, जो कि मज़ेदार भी है अपने में। मतलब या टाइमलाइन कम है, बट ऑब्वियसली द कोर्स इज़ मोस्टली सेम, इट्स जस्ट लाइक थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्ट हो जा कॉन्ट्रा उसको थोड़ा कंप्रेस कर देता है सो दैट यू मीट द टाइमलाइन, कंप्रेस कर है देते ना? हैं, यस, कंप्रेस कर हुँ, देते हैं। हुँ, और इंडियन क्लासिकल थिएटर जो है हुँ, उसके बारे में और हमें डिटेल में मिलता है, इंडियन क्लासिकल ओके, थिएटर के बारे में, जो कि ओ दिल्ली में भी सेकंड ईयर उनका जो होता है उसमें पढ़ाया भी जाता है। जैसे इंडियन क्लासिकल में यक्षगान हो गया, है ना? कथकली हो हुँ, गया, कुडियाट्टम हो गया, दीज़ आर थिएटर फॉर्म्स ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और आई वुड से इंडिया। उसके बारे में डिटेल हुँ, में जाने का मौका मिलता है। और फिर जैसे कि हम हुँ, इसमें केरला में भी गए थे, वी वेंट टू केरला अच्छा, टू लर्न अच्छा, कुडियाट्टम। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिएटर फॉर्म ऑफ वर्ल्ड। हुँ, दिस इज वन ऑफ द ओके, टफेस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर इन द वर्ल्ड। इसके अलावा कैलरीपयट्टू मार्शल आर्ट फॉर्म, वो भी सिखाई थी हम लोगों को, क्योंकि मदर ऑफ मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। या हुँ, गॉट इट। सो इट वाज़ ओवर अ ग्रेट
टफ बट एक्सपीरियंस, लाइक टफ बट बहुत Ex- एक्सपीरियंस करने की जर्नी थी, लाइक अ लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट? Absolutely. हम्म। Yes. सो अभी जो आपने, लाइक आई नो यू कंडक्ट वर्कशॉप्स, अब मुंबई में भी करते हो, यू डू इट इन गुड़गांव, और भी मेरे ख्याल से बहुत जगह आपने कंडक्ट किया। हाउ यू क्यूरेटेड Mhm. दैट कोर्स? वाज दैट बेस्ड ऑन completely that experience, or you mix merge many things and then created a kind of curated a मतलब बहुत customized work? Because I know it was 2 day, we did for 2 days, I think. It was a very much Mhm. learning experience for me personally, like not on an acting level but on a personal Mhm. development level. So tell me, like, how you curated that course. गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हुआ ये कि 2012 से मैं कर रहा हूँ, और 12 के हिसाब से अगर आज हिसाब लगाया जाए तो 2004 आई वुड से 12 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए। इसके अलावा मैं पिछले 7 साल से सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत में इस तरह से हुई थी कि मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आई स्टार्टेड गिविंग वर्कशॉप टू किड्स। उसमें विनीत सर का नाम है, दोबारा लेने में मुझे हिचक नहीं है। उनके साथ मैंने शुरू किया था। तो आई रिमेम्बर कि वो एक जितना मुझे आता था उस हिसाब से मैं बच्चों को पढ़ाता था, सिखाता था। मुझे मेरे स्टूडेंट जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं या टीचर्स मेरे सीनियर देते हैं, वो ये कहता है कि मैं बहुत इंथुसियास्टिक तरीके से सिखाता हूँ, एनर्जी के साथ। चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, मैं कुछ सबको एक एज में ला के रखता हूँ। चाहे वो 55 साल का होगा तब भी उसको मैं बोलूंगा कि चलो कमान कमान कमान, और एनर्जी और इमोशन और एक्सप्रेशन और वॉइस आउट चाहिए। ये मेरा एक, मुझे लगता है मेरा प्लस पॉइंट जो है। लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो उसमें एनएसडी जाने से पहले मेरा कुछ अपना एक तरीका था। मैंने फ्रॉम एनएसडी उसमें कुछ चीजें और ऐड, लेकिन ये हुआ कि मैं खुद के एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज और गेम्स भी करता हूँ, मेरे खुद के बनाए। आई गिव टाइम टू माई सेल्फ, कुछ चीज नोट भी करता हूँ। और वर्कशॉप जैसे क्लास होती है रेगुलर, उसमें ना मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज भी करवा देता हूँ कि चलो ऐसा करके देखते हैं, Hmm. ऐसा करके देखते हैं, लेट्स ट्राई क्या आता है। देन आई आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स की लेट मी टेल मी हाउ यू फेल्ट। तो मुझे लगता है वो मुकम्मल हो गई है, तो हाँ ये एक्सरसाइज हम काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट मिल रहा है। तो यस, अगर मेरे से पूछा जाए तो जैसे मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये एक्सरसाइज आप करवाते हैं, कोई रिपीटेटिव भी होती है, मैं बोला यस। तो ऐसे कितने एक्सरसाइजेज होंगे, मैंने बोला मोर देन 2000 एक्सरसाइजेज। लेकिन आप करो, Hmm. करने वाले बनो। तो मेरे पास देखा जाए मेरे पूरे 5 इयर्स का कोर्स है। अगर मैं डेली अलग अलग एक्सरसाइज करवाऊँ तो मेरे को 5 साल का मेरे पास पूरा पूरा कोर्स है। अगर मैं डेली Wow, अलग अलग एक्सरसाइज करवाऊँ that's जिसमें कि huge. सारी चीजें Yeah. या जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, स्पीच, इमोशंस, इम्प्रोवाइजेशन, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स Hmm. लाइक टेक्स्ट। ऑडिशन भी Hmm. मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि मुंबई में हो तो मैं ऑडिशन वाला पार्ट भी ले लेता हूँ, थोड़ा उसको भी इंक्लूड कर दिया Hmm. कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थोड़ी तरह से Hmm. एक्सपेरिमेंटल भी चलता है, कुछ मेरे टीचर्स का मेरे गुरुओं का भी साथ है, और कुछ मैं पढ़ता भी रहता हूँ इधर उधर, और कुछ मेरे बनाई हुई खुद की भी चीजें ऑफ माई It's ओन। like you kind of customize, I mean, basically handmade hai, like made from many of your experiences plus classes राइट plus राइट। it's a handmade curated thing. I think you do it for corporate as well. Is that, or maybe I'm wrong? आप corporate के लिए और भी फिर कुछ करते हो ना? Not कॉर्पोरेट exactly. में मैंने नॉट हाँ. एग्जैक्टली मैंने अकेले नहीं किया हम्म. है। जैसे मैं बताया कि पिछले अच्छा. ग्रुप में जब मैं था टीजीआईएस के साथ, हम्म. तो उनके साथ मैं करता था। एंड अच्छा. वो मजेदार रहता है, वो अच्छा भी रहता है, क्योंकि उसमें मुझे याद है क्लाउनिंग वाला परफॉर्मेंस है, तो उनको भी अच्छा हम्म. लगता है, ब्रेक मिलता है। तो कॉर्पोरेट वालों में हम्म. मैंने देखा ही है बस अपने आसपास, जैसे आप भी हैं उनमें से, ठीक है, अभी ज्यादा हाँ. डिटेल तो नहीं पता, तो मैंने देखा हाँ. थोड़ा हाँ. सा वो उनको ब्रेक चाहिए होता है डेली रूटीन से ना। True, true. Agreed, agreed. That's why I attended it, obviously, because we are so used to same Yes, kind of life. So yeah, we need it. और जी जी। कुछ लोग, I am still into creativity. कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं होते ना. They are like they go to job, they just come back and आई that's नो it. बिल्कुल बिल्कुल, हुँ। बहुत हाँ, होते हैं तो ऐसे। ग्रेट, ग्रेट। एंड I mean, I genuinely want to give a shout out to your handmade curated course, अमेज़िंग था, जेन्युइनली सेइंग दैट। तो एक बार उस पे बात कर लेते हैं। हमने वर्कशॉप में भी आपने बताया था वो 4 मेजर पिलर्स, राइट? व्हिच मेक एक्टिंग एंड हम्म, एक्टिंग, ठीक है? उसके बारे में, क्योंकि वर्कशॉप बहुत डिटेल थी, आई थिंक हम हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते, बट ये पार्ट बहुत ज़्यादा right, लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए पर्सनली। तो आप हम्म, एक बार वो चारों को एक्सप्लेन कर दोगे? बिकॉज़ समवन हू इज़ न्यू और जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग, उनके लिए इतना बेसिक भी एज़ अ स्टार्ट आई थिंक एक टेक अवे होगा। जी, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यही बेसिक है। उसको बताने से पहले इसमें ये इतना बोलूंगा,
एक्टिंग का बेसिक भी है और एडवांस भी है। व्हाट इज दैट? Hmm. 4 पिलर्स ऑफ एक्टिंग या फिर 4 टाइप्स या एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग। जिस पहले एक्टिंग समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बेसिक पे चल जाते हैं। एक्टिंग क्या है? अगर हम कोई भी इन 4 चीजों को बदलते हैं, इन 4 चीजों को, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है? आंगिक का मतलब हुआ बॉडी लैंग्वेज, फिजिकलिटी सा। वाचिक का मतलब हुआ वॉइस एंड स्पीच। आहार्य का मतलब हुआ कॉस्ट्यूम एंड मेकअप। सात्विक मीन्स इंटरनलाइजेशन या फिर इमोशन भी कहते हैं। और मैंने श्लोक भी बताया जैसे कि हांगी को वाचिक चाहिए, हारे सात्विक तथा चतुरारो यदि रहा, ये तो बिल्कुल नाचे पंच है। अब इसलिए क्या ना, मुझे याद रहता है इसलिए मैं श्लोक बोल देता हूँ। तो अब क्या होता है, इन चारों चीजों को अगर हम बदल देते हैं तो उससे एक नया करेक्टर बनता है। आप समझिएगा ध्यान से। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज है स्ट्रेट बैठने की, यूजली अगर आपकी उम्र कितनी भी है, 20 साल, 25 साल, 50 साल जितनी है, अगर आप यूजली स्ट्रेट बैठते हैं तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो आपको थ्रूआउट द जर्नी ऑफ योर लाइफ आपने मेंटेन कर लिया और हैबिट बन गई। लेकिन अगर इसी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दो, हल्के से अपने कंधों को ऊपर उठा लो या झुका लो, नाउ इट्स अ न्यू बॉडी लैंग्वेज। अब जब बॉडी लैंग्वेज नहीं हो गई तो ये आपका नया कैरेक्टर भी बन गया है। यू आर नॉट ओनरशिप प्रतीक और स्तुति, यू आर अ न्यू कैरेक्टर नाउ। तो अगर बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हो, यू आर अ न्यू कैरेक्टर एंड इट डिपेंड्स कैरेक्टर टू कैरेक्टर कैसी बॉडी लैंग्वेज आपको लेनी। सिमिलरली वॉइस, अगर ये मेरी वॉइस है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अरे सुनो, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अरे भाई क्या हो गया, तो आई एम नॉट शिव प्रतीक, आई एम अ न्यू कैरेक्टर क्योंकि मेरी वॉइस में चेंज आ चुका है। ठीक है? इसी तरह से कॉस्ट्यूम मेकअप, अगर मैं आज टी शर्ट जीन्स पहनता हूँ यूजुअली, तो ये मेरा कैरेक्टर है। अगर मैंने चेंज कर लिया, मैं कुछ और फॉर्मल से पहन लिया, तो मेरा कैरेक्टर नया बना। मैं एक ऑफिस गोअर बन गया, कॉर्पोरेट वाला बंदा बन गया, या फिर मैंने चर्च की कॉस्ट्यूम डाल ली या पुलिस वाले की डाल ली, तो या फिर मैंने कोई मैं ढीले ढाले कपड़े पहन लिए डिफरेंट तरीके से, या आज मेरे बाल ऐसे में रखे हुए मैंने गंजा हो गया है, फिर बड़े बाल कर लिए, छोटी रखी, सो आई एम न्यू कैरेक्टर नाउ, मैं वो नहीं हूँ जो पहले वाला। ऐसे ही फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरनलाइजेशन, मतलब साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर वो भी चेंज होती है तो नया कैरेक्टर बनता है। एंड लेट मी टेल यू, हम सब लोग अभी तक अपनी पूरी लाइफ में बहुत बार डिफरेंट कैरेक्टर्स बन चुके हैं रियल लाइफ में। क्योंकि जब हम कॉलेज स्कूल में थे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। कॉलेज में आए तो डिफरेंट तरीका बना, देन वी बिकम अ न्यू कैरेक्टर। फिर ऑफिस वाले बने, मतलब जॉब बॉय बने, या फिर एम्प्लॉयड हुए, सब अलग हुआ। फिर जब शादी हो जाती है किसी इंसान की, उसका एक अलग अलग कैरेक्टर बनता है। होता नहीं कि जब पेरेंट बनता है कोई तो अपने बच्चे से बात करने का उसका एक तरीका बनता है, और बेटा और है तो वॉइस में चेंज आया ना, so he's a new character for his daughter or son. So in short, अगर हम इन चारों चारों चीजों को बदलते हैं तो हम लोग एक नया कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। चाहे इनमें से एक चीज बदल जाए तब भी एक नया कैरेक्टर है, या चाहे चारों बदल जाए। एक अच्छे एक्टर की खासियत ये होती है कि वो चारों चीजों को बदले, कि उसे दिखना नहीं चाहिए Hmm. कि वो स्तुति है या शिव प्रतीक है। थोड़ा चेंज कर ले अपनी साइकोलॉजी, अपने बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और कॉस्ट्यूम्स को। लेकिन कम से कम एक बदलने से ही आपका एक नया कैरेक्टर बदल सकता है। क्योंकि बहुत लोग आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज वैसे रखते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं वही बॉडी लैंग्वेज रखेंगे, वही वॉइस रखेंगे, कपड़े भी सिमिलर से पहनेंगे, लेकिन साइकोलॉजी बदलती है, जो कि दिखती नहीं है, वो जो साइकोलॉजी, तो वो भी बदलाव है एक तरीके। सो दीज आर द फोर पिलर्स और टाइप्स ऑफ एक्टिंग जिसको हम समझ सकते हैं। जी। या राइट, सपोजिटली कोई लॉयर बन रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी स्ट्रक्चर पहले वो अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकता है, फिर वो कपड़े वो ब्लैक पहन लेगा, फिर वॉइस में थोड़ा हेवीनेस आ जाएगा, देन इंटरनलाइज द एग्रेशन, तो ऑब्वियसली दैट विल बी चेंजिंग। सो ग्रेट यार, यस। मतलब हाँ, ये चार का पॉइंट, चार वाली चीज थी विच आई वांटेड टू, आई मीन दिस दिस इज अ, or could something you want to add as a takeaway for people who are like maybe want to go to NSD, or just trying out, like starting out with acting, or maybe somebody who is already into field but still you have something for them to tell or something like that. Mm. थैंक यू ये सवाल के लिए, क्योंकि मैं जाता रहता था ना, तो बस इतना Mm. कहना चाहता हूँ न्यू कमर्स को कि एक्टिंग जो है ना, वो ग्लैमर जो आप देखते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, या फिर आप आसपास सक्सेसफुल लोगों को भी देखते होंगे, है ना? हेलो, यू आर Yes, लिसनिंग टू मी ना? yes, ओके। yeah, yeah, या yeah, 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 yeah. हाँ हाँ, सो वो है, मना नहीं कर रहा, ठीक है, वो चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम पे पर डे कम से कम 10,000 भी मिलता है एक्टर को पर डे, और 10,000 से बोलूंगा पर डे। अगर वो पूरे महीने भर काम करता है तो
₹1.5 लाख हो गया ना, 15 पेड हो गया ना, Yeah, इट्स अ गुड yeah. अमाउंट, है ना? लेकिन वो ₹10,000 या ₹15,000 पर डे जो मिलता है ना, वो काम ऐसा है कि जहाँ पर आपको अपनी साइकोलॉजी तो बदलनी है, माइंडसेट बदलना है, आपको अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेगी एज़ अ कैरेक्टर में जाने की, ठीक है? भले ही आपके घर में अगर मैं कहूँ कि कोई परेशानी चल रही है, नॉट इन अ गुड मूड, तो है ना? घर में कुछ परेशानी चल रही है, दिक्कत चल रही है, यू माइट बी सैड, बट यू हैव टू डू अ कैरेक्टर ऑफ अ comical character. To draw a comical character, you need to do that. But it's a job. So important key takeaway ये है कि acting is a job और उसको जॉब की तरह ही करना, जितनी पूरी शिद्दत भी देनी है इंसान को। ये नहीं है कि यार आई एम नॉट इन मूड या मेरा इमोशन नहीं आ रहा है तो मुझे पहले गाने सुन लेता हूँ, सुन लेती हूँ। यू हैव टू प्रिपेयर दैट मच कि आपका इमोशन तुरंत आए। इसको मैं बोलता हूँ स्विच ऑन एंड ऑफ एक्टिंग, क्योंकि आपको डायरेक्टर नहीं बोला भाई मुझे नहीं पता, तेरे को पैसे मैंने 1.5 लाख 1.5 करोड़ इसलिए दिए हुए हैं, अभी मुझे सैड देखना है तो मेरे आंखों में एक्सप्रेशन को सैड देखना है, ठीक है? तो उसी के लिए क्या चाहिए, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो उसी के लिए आपको ट्रेनिंग के प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। एक एक्टर के लिए मेरे पास यही वॉइस अपनी कि उसको कम से कम कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रेनिंग के प्रोसेस से जाना ही चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप कम से कम रिजेक्ट हो और आपको अच्छे से अच्छा काम मिले तो आपको उस ट्रेनिंग के दौरान रहना ही पड़ेगा, और जितने दिनों तक रहोगे ट्रेनिंग में उतने बेटर एक्टर बनते हो। लाइक नसरुद्दीन शाह, ठीक है? नसरुद्दीन शाह आज भी थिएटर करते हैं, ठीक है? और मकरान देश पांडे और भी बहुत सारे एक्टर, ठीक है? तो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है? कुछ लोग अपने घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज गुड थिंग। तो एक्टर को थिएटर के थ्रू थिएटर की जर्नी ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे लगता है कम से कम 1 साल थिएटर करना ही चाहिए, चाहे कहीं पे भी करे। अगर उस एक्टर वो चाहता है कि वो प्रोफेशन में जाए और डीप एक्टिंग को समझे तो। नहीं तो ऊपरी तौर से अगर आपको उसको एज अ प्रोफेशन ऐसा करना है, यू कैन डू एड्स जिसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, सिर्फ पैसा तो मिलता है, चेहरे के बेस पे मिलता है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, और थोड़ी बहुत एक्टिंग चाहिए होती है, ठीक है? लेकिन अगर आपको एक्चुअली एक्टर जो एक्टर हम बोल रहे हैं वर्सेटाइल एक्टर बनना है, उसके लिए आपको डीप नॉलेज के लिए थिएटर की थ्रू जर्नी जानी ही पड़ेगी, ठीक है? तो दिस इज वन थिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर होके आइए। और नसीर साहब भी कहते हैं, और मैंने उनको सुना अभी कुछ दिन पहले, लेकिन मैं भी ये चीज मानता हूँ बहुत पहले से कि ये लेबर वाला काम, जैसे लेबर्स होते हैं ना, लेबर वाला काम है कि आपको बस बता दिया ये करना है, बस में सुख सुविधा ज्यादा अच्छी रहती है कि थोड़ा मिल गया आपको वैनिटी मिल गई है, कॉस्ट्यूम जो है मिल गया है, मेकअप मिल गया है, बट रिग्रेस काम है। आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, जैसे अर्लियर कुछ भी चल रहा है, बट आपको चेहरे पे हैप्पीनेस दिखानी है तो दिखानी ही है, ठीक है? आप भले ही थके हुए हो लेकिन आपको एनर्जेटिक दिखाना है तो दिखाना है, और वो कब कैसा आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, उसके लिए मैं कहूँ बहुत सालों की जो प्रैक्टिस होती है एक्टर की अपनी जर्नी की, वो आती है। तो वो इसके लिए मेडिटेशन भी वन ऑफ द प्रोसेस है, उसके लिए योगा भी वन ऑफ द प्रोसेस है, और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो थिएटर के दौरान आप किसी टीचर या गुरु के अंदर ही सीख पाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी। Great, great. Yeah, thank you. I mean, I agree to meditation and yoga part. I think किसी भी क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छे टूल्स हैं। किसी भी बी यू आर ए एक्टर, आप म्यूजिशियन हो, आप फिटनेस में हो, आप किसी भी चीज़ में हो, दीज टू आर लाइक रियली गुड थिंग्स टू या आई एग्री। सो ठीक है, थैंक यू सो मच शिव फॉर गिविंग मी योर टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। सो या, thank you so much. I hope you also had a good time. So, थैंक यू, yeah, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस ये है yeah. कि सब लोग करते रहे, सीखते रहे, और एक चीज है कि मैं क्या चाहता थिएटर जो है इट्स नॉट Hmm. ओनली फॉर देम जो कि एक्टिंग करना चाहते हैं। थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो कि मुझे लगता है हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में Hmm. बोला ही था, इमोशंस की बात हमने की थी, ठीक है? हमारे अंदर इमोशनल डेवलपमेंट आता है, हम चीजों को बड़ा लिबरल तरीके से देखना शुरू करते हैं, चीजों को जब रिजिड नहीं हो जाते कि ये इंसान ऐसा है तो ऐसे ही होगा, ये चीज ऐसी, तो आपकी माइंड को थोड़ा Hmm. ओपन अप करता है, और वही Right. मेडिटेशन का भी मकसद है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे Hmm. साथ आपने इतनी अच्छी बातें की, थैंक यू सो मच। Thank you so much. So, thanks, listener, for listening to us. Stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I will see you another one. Bye.